فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے کہا ہے کہ چیف منسٹر KCR کی حکمرانی سے سماج کے تمام مذاہب اور طبقات پوری طرح مطمئن ہیں۔ اسمبلی حلقے سنت نگر کے حدود میں واقع بیگم پیٹ ڈویژن میں 61 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر سنیماٹوگرافی تلاسانی سنیواس یادو کے علاوہ دوسرے مقامی قائدین موجود تھے۔ SP روڈ اور پیٹنی نالا 10 کروڑ روپے کے مصارف سے تعمیر ہونے والے برج کا سنگ بنیاد رکھا۔ پارٹی گوڑا میں 6 کروڑ روپے کے مصارف سے تعمیر ہونے والے ملٹی پرس فنکشن ہال کے تعمیری کاموں کا SNDP پروگرام کے تحت 45 کروڑ روپے کے مصارف سے بیگم پیٹ نالے کے تعمیری کاموں کا آغاز کیا۔ پارٹی گڈا میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غریب عوام کو شادی و دیگر تقاریب کا انعقاد کرنے کے لیے فنکشن ہال تعمیر کیا جا رہا، جس پر 6 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے۔ تلنگانہ کی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے تلنگانہ کے لیے کسی نئے تعلیمی ادارے اور فنڈز منظور نہیں کیے، جبکہ اس نے گزشتہ 7 سال میں ملک میں کئی تعلیمی ادارے فراہم کیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت تلنگانہ کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہی۔ کیا ریاست تلنگانہ ملک کا حصہ نہیں ہے؟ گزشتہ 7 سال میں ملک میں 7 IIMs، 7 IITs، 16 IITs، 157 میڈیکل کالجز اور 84 نودیا ودیالیاس منظور کیے گئے، جبکہ تلنگانہ کے لیے ایک بھی تعلیمی ادارہ نہیں دیا گیا۔ سبیتا اندرا ریڈی نے وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ہمراہ عثمانیہ یونیورسٹی کالج آف سائنس سیف آباد پر نئی ہاسٹل بلڈنگ کا افتتاح کیا۔ مرکز کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وزیر تعلیم نے کہا کہ تلنگانہ ملک کی چند ریاستوں میں ایک ہے جو مرکز کو بہت زیادہ ریونیو فراہم کرتے ہیں، لیکن مرکزی حکومت سے فنڈز کے حصول کے معاملے میں یہ آخری مقام پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے ریاست کو فنڈز منظور نہ کرنے پر بھی ریاستی حکومت 959 اقامتی تعلیمی ادارے شروع کیے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں خواتین کے لیے 30 ڈگری کالجز اور ایک لا کالج قائم کیا گیا ہے۔ اب تک کی اس نوعیت کی سب سے بڑی کارروائی میں خیال کیا جاتا ہے کہ آندھرا پردیش پولیس نے 2 لاکھ کلو سے زائد گانجے کو، جس کی مالیت 500 کروڑ روپے بتائی گئی ہے، نظر آتش کر دیا۔ ضلع وشاکھاپٹنم پولیس کی جانب سے منظم کردہ بڑے پروگرام میں خشک گانجے کو نظر آتش کر دیا گیا۔ DGP AP گوتم سوانگ نے ضبط شدہ گانجے کے اس ڈھیر کو آگ لگائی۔ انکاپلی منڈل کے واضح کوڈور میں ایک کھلے مقام پر ضبط گانجے کو نظر آتش کرنے کا پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ AP پولیس اور اسپیشل انفورسمنٹ بیورو وشاکھاپٹنم ضلع نے اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس باقاعدہ پروگرام کے لیے حکام نے فینسی ٹینٹس، ڈرون کیمروں کی تنصیب عمل میں لائی تھی، اسپیکرز اور ساؤنڈ سسٹم بھی لگایا گیا تھا۔ پولیس کی بھاری جمعیت کے علاوہ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس اور محکمہ فائر سروسز کے جوانوں کو بھی متعین کیا گیا۔ عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتیں $94 فی بیرل سے اوپر جانے کے باوجود پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آج لگاتار 101ویں دن کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ایندھن کی قیمتوں میں 4 نومبر 2021 کو کمی کی گئی تھی، جب مرکزی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں بلا ترتیب 5 اور 10 روپے کی کمی کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد ریاستی حکومتوں کی جانب سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس ویٹ کو کم کرنے کے فیصلے کے بعد دارالحکومت دہلی میں بھی ویٹ کو کم کرنے کے بعد قومی راجدھانی میں 2 دسمبر 2021 کو پیٹرول تقریباً 8 روپے سستا ہو گیا۔ تاہم ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ زیادہ تر ریاستی حکومتوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے بھی پیٹرول اور ڈیزل پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو کم کر دیا تھا، جب مرکز نے ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کی تھی، جس سے عام آدمیوں کو بڑی راحت ملی تھی۔ سنگاپور میں آج صبح لندن برینٹ کروڈ $94.44 فی بیرل اور US کروڈ 4.47% اضافے کے ساتھ $93.90 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا۔
कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी की वजह से नौजवानों की खुदकुशी के मामले में गुज़िश्ता 6 सालों में इजाफे का इंकशाफ करने वाली एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि मुल्क के नौजवानों को दुश्वारियों का सामना है, आखिर कब तक असल मसाइल से अवाम को भटकाया जाएगा। बादशाह प्रियंका गांधी ने जिस मीडिया रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है उसके मुताबिक बेरोजगारी की वजह से नौजवानों की खुदकुशी के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में इसके आदाद व शुमार भी पेश किए गए। ट्वीट में प्रियंका गांधी ने रिपोर्ट के हवाले से कहा कि गुज़िश्ता 6 सालों में बेरोजगारी से खुदकुशी करने वालों की तादाद में 60% इजाफा हुआ है। साल 2018 से 2020 के दरमियान बेरोजगारी की वजह से हर महीने औसतन 12 लोगों ने खुदकुशी की है। प्रियंका गांधी ने लिखा, मोदी जी 70 सालों की रट छोड़कर असल मसाइल पर बात कीजिए। नौजवान तकलीफ में हैं, कब तक असल मसाइल से भटकाएंगे। अब्दुल लतीफ अतीर एकेडमिक इंचार्ज टिमरिस तेलंगाना ने नारायणपेट का दौरा किया। उनके हमरा मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस जनरल मैनेजर IT कंपनी, शेख इम्तियाज हैदराबाद, मिर्जा हुसैन हैदराबाद, ख्वाजा जमील अहमद RLC टिमरिस ऑफिसर महबूब नगर ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान हजरात ने रास तौर पर तलबा से बातचीत की और सख्त मेहनत व लगन से तालीम हासिल करने की हिदायत की। उन्होंने तलबा से तालीम से मुत्तलिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। बादशाह अब्दुल लतीफ अतीर एकेडमिक इंचार्ज टिमरिस तेलंगाना ने नारायणपेट के अक़लियती क़ामती स्कूल बॉयज व अक़लियती क़ामती कॉलेज बॉयज का तफसीली मुआयना किया और मुख्तलिफ मसाइल से वाक़फियत हासिल की और जरूरी हिदायत भी दी। स्कूल व कॉलेज के तलबा ने मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया। बादशाह अब्दुल लतीफ अतीर अब्दुल कुद्दूस व दीगर ने नारायणपेट के मॉडर्न हाई स्कूल में खलील अहमद ताज सदरुल मलिका एजुकेशन सोसाइटी की सदारत में मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत की। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी के पेश नजर आज से शबाना कर्फ्यू नाइट कर्फ्यू के औकात में तब्दील की गई है। नए औकात के मुताबिक अब रियासत में रात 11 बजे से कर्फ्यू का निफाज होगा। कोरोना बहरान के पेश नजर अभी तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का निफाज रहता था। ख्याल रहे कि नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी खिदमात के अलावा दीगर तमाम तरह की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद होती है। जबकि सूबे में कोरोना के मामलों में इजाफा हो जाता है तो वायरस को रोकने और अवाम में बेदारी लाने के मकसद से कर्फ्यू नाफिज किया जाता है। अब यूपी में कोरोना के मामलों में गिरावट आने के पेश नजर हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू के वक्त को 2 घंटे महदूद करने का फैसला लिया है। ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक यूपी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के सबसे ज्यादा 375 मरीज लखनऊ में पाए गए, जबकि गौतम बुद्ध नगर में 125, लखीमपुर खीरी में 92, वाराणसी में 80 और झांसी में 79 मरीजों की तस्दीक की गई। रियासत में सबसे ज्यादा फाल केसेस 2721 भी लखनऊ में हैं। इसके अलावा कानपुर शहर में 1921, इलाहाबाद में 1103 और मेरठ में 930 मरीज ज़ेर इलाज हैं। बांग्लादेशी गुस्ताख मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन ने एक मरतबा फिर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है। उसने ट्विटर पर इस सिलसिले में पोस्ट किया। तस्लीमा नसरीन ने हिजाब बुर्क़े को तारीख दौर की अलामत करार देते हुए कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का निफाज जरूरी है। उसने हिजाब को तारीख दौर का पट्टा करार दिया और ये मंतख की कि बुर्क़ा या हिजाब कभी भी औरत का इंतखाब नहीं हो सकता। इसका कहना है कि इस तनाज़े को खत्म करने के लिए यकसा सिविल कोड और यकसा ड्रेस कोड का होना बहुत जरूरी है और मजहब का हक तालीम के हक से बड़ा नहीं है। ABG ग्रुप के 2 दर्जन से ज्यादा बैंकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में कांग्रेस ने मरकज में बरसरे इख्तिदार बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया है। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत के 7 सालों में बैंकों के NPA में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत की पॉलिसी है बैंक का पैसा लूटो और भागो। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड केस है, जिसमें ABG शिप यार्ड लिमिटेड और उसके साबिक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल की क़ियादत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत मुतअद्दिद बैंकों से 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। धोखेबाजों को धोखा देने का पूरा मौका दिया जा रहा। और चौंकिए 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए। मैं फिर दोहराता हूं 3 महत्वपूर्ण तथ्य।
पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड्स हुए। पिछले 7 साल में मोदी सरकार में बैंकों ने देश के लोगों की 8,17,000 करोड़ रुपया राशि बट्टे खाते में डाल दी है। तीसरा, मोदी सरकार के 7 साल में बैंकों के एनपीए में 21 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने के अपने हक के सिलसिले में मुखालिफत के लिए उकसाने वाले लोग उनका इस्तेमाल समाज को तकसीम करने और हुकूमत को शर्मिंदा करने के लिए कर रहे। वाज़ेह है कि आरिफ मोहम्मद ने जिस वक्त ये बयान दिया वो उस वक्त नई दिल्ली में है। नई दिल्ली के दौरे पर आए खान ने पड़ोसी रियासत कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब के सिलसिले में जारी तनाज़े के ताल्लुक से मीडिया से बातचीत में ये तबसरा किया। उन्होंने कहा कि ये कोई मसला ही नहीं है, ये गैर जरूरी है और जो लोग मुस्लिम ख्वातीन को हिजाब पहनने के उनके हक के लिए एहतजाज करने के लिए उकसा रहे हैं वो दरअसल मुस्लिम लीग की विरासत पर अमल कर रहे। उन्होंने कहा कि अगर हिजाब पहनने का उनका मुतालबा मंजूर कर लिया जाता है तो मुस्लिम ख्वातीन की हकीकत में हार होगी। उन्होंने मुस्लिम तालिबात से पढ़ाई पर तवज्जो देने और किसी के बहकावे में न आने के लिए कहा। गवर्नर ने अपने बयान में कुरान में बयान की गई एक खातून की कहानी भी सुनाई कि मजहब इस्लाम में ऐसे वाकयात भी हुए हैं जब ख्वातीन ने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया था। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने हिजाब तनाज़े पर बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा, मुझे डर है कि बीजेपी हिजाब तक ही महदूद नहीं रुकेगी, वो मुसलमानों की दूसरी अलामतों पर भी तनाज़ा खड़ा करेंगे और उन सब को मिटा देंगे। हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हिंदुस्तानी होना ही काफी नहीं, उन्हें बीजेपी भी होना होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर एक सियासी मसला है लेकिन वो उसे एक तबके से वाबस्ता करना चाहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।